Good morning student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will revise electrochemistry again. We are continue revising electrochemistry. There are four chapters which are very important from the numerical point of view. Therefore we should pay more attention because it is mathematical part. Then you can get number easily in these chapters. First one is the solid state, next one is the solution, then electrochemistry, then chemical kinetics. All these chapters have very easy numericals, and these numericals are the formula based. As you know that in revision class of electrochemistry, we are revising conductivity. During conductivity, we saw the graphical representation of conductivity of the weak electrolyte and strong electrolyte, and in which we saw the Haeckel's Onsager a graph or equation. We saw that how the responses in the d by Haeckel-Onsager equation, we saw that how the strong electrolyte responds, how the weak electrolyte responds. Okay, and we saw that at infinite dilution we can calculate conductivity of a strong electrolyte by the extrapolation of the graph. Okay, by the extrapolation of graph. But in case of weak electrolyte at infinite dilution, we can't extrapolate graph to know about the conductivity of weak electrolyte. Why it is so? Because there are a equilibrium established between the dissociated ion and undissociated compound. As you know that weak salt, weak organic compounds, weak electrolytes do not dissociate completely. Do not dissociate completely. So in that case, if we have to know the conductivity by the mobility of ions of the weak electrolyte, we have to use Clausius law. Without Clausius law, we can't determine the conductivity of weak electrolyte at the infinite dilution. At the infinite dilution. So what should we do? We should do to know the Clausius law. What is Clausius law? According to Clausius law, the conductivity of weak electrolyte is due to the contribution of molar conductivities of the individual ions. That is, you can say that conductivity of any strong weak electrolyte is the sum of conductivities of individuals ion. Conductivity of any electrolyte is the sum of conductivities of individual ion. Sum of conductivity of individual ion. Okay, this is known as Clausius law. तो यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग कुछ दिनों से रिवीजन के कोर्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रिवाइज कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन को रिवाइज कर लिया है। अब ये लास्ट चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं Clausius लॉ, क्योंकि हम लोगों ने कल डी बाई Haeckel-Onsager इक्वेशन से जो है कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की नेचर को देखा था।
किस तरह से कंडक्टिविटी अफेक्ट होती है इलेक्ट्रोलाइट के नेचर से, कंसंट्रेशन से। और कंसंट्रेशन के केस में हमने देखा कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी कंडक्टिविटी हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे नहीं पता कर सकते। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसलिए नहीं पता कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जो डिसोसिएटेड आयन है और अनडिसोसिएटेड कंपाउंड है, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे CH3COOH, ये जब एक्वस सोल्यूशन में जाएगा तो CH3COO माइनस और प्लस H प्लस हो जाएगा, ठीक है, H प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कितना भी हम डाइल्यूशन कर दें ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा। जितना हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे डिसोसिएशन की जगह एसोसिएशन भी होने लगेगा, फिर एसोसिएशन होगा, फिर डिसोसिएशन होगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे या जीरो कंसंट्रेशन पे पहुंच करके भी हम ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके हम नहीं पता कर सकते हैं कंडक्टिविटी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो अब इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हमें कंडक्टिविटी पता ही करनी है तो इसके लिए खलरॉस ने एक नया रूल बताया जिसको हम खलरॉस लॉ के नाम से जानते हैं। और खलरॉस लॉ कहता है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ आयंस है, और प्लस जो है कि एक इंडिविजुअल आयंस की कंडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से खलरॉस ने बताया कि जो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो सम ऑफ द कंडक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल आयन मल्टीप्लाई बाय देयर नंबर्स। ओके, तो अब यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं। अब आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो खलरॉस लॉ ने क्या कहा कि जो कंडक्टिविटी होती है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो सम ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल या आयनिक कंडक्टिविटी या आयनिक कंडक्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल आयंस। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपने टॉपिक को अकॉर्डिंग टू खलरॉस लॉ the conductivity of the molar conductivity of any weak electrolyte is the sum of ionic conductivities of their constituent ions। ओके, तो ये हमारी है खलरॉस लॉ के हिसाब से मोलर कंडक्टिविटी किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो होती है वह सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी होती है। वो क्या होती है? सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट आयन। जैसे कि अब हमारे पास CH3COOH है, ये यहाँ पे ब्रेक होगा एक्वस कंडीशन में, तो ये CH3COO माइनस AQ प्लस H प्लस AQ ये बनेगा। तो अब अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमें पता करना है किसका, CH3COOH का,
तो ये इक्वल टू हो जाएगा कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ CH3CO माइनस प्लस यहाँ पे कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस है। ठीक है, ये है कोलरॉस लॉ, ये कोलरॉस लॉ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद हम लोग अब सपोज कि हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, ये तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, एक जनरल फार्मूला बना लेते हैं। तो हमने जो जान लिया एक बार और रिपीट कर लेते हैं चलते चलते कि इस लॉ अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट आयन। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी जो होती है मोलर कंडक्टिविटी, वो सम ऑफ द उसके आयंस के कंडक्टिविटी आयनिक कंडक्टिविटी के सम होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे एक जनरल फार्मूला। सपोज कि कोई कंपाउंड है AX और BY, इसकी हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। ठीक है, राइट, यहाँ पे क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन Q, राइट द कोलरॉस इक्वेशन, कोलरॉस law equation for the compound AXBY। ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसके लिए हम आंसर यहाँ पे क्या होगा, आंसर देख लेते हैं हम लोग कैसे क्या होगा। तो ये है हमारा कंपाउंड AXBY। अब ये जब भी टूटेगा तो XAY माइनस Y प्लस और YB X माइनस। ठीक है, इस तरह से सपोज ये ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ पे हम ये चूंकि नंबर को भी बताता है, चार्ज को भी बताता है, तो ये Y इसकी वैलेंसी है और X इसकी वैलेंसी है। हम लोग जानते हैं कि ये क्रॉस होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम मोलर कंडक्टिविटी अगर लिखेंगे AXBY के लिए, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, X लैम्डा AY प्लस, यहाँ पे नॉट इनफाइनाइट डायल्यूशन पे देख रहे हैं, Y लैम्डा B नॉट माइनस। ठीक है, X माइनस, सॉरी X माइनस। ये हमारा एक जनरल फार्मूला हो गया किसी भी साइड के। ठीक है, जैसे अभी लिखना हो हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अगर हम लेते हैं, सपोज AgCl के लिए लिखना है, AgCl के लिए लिखना है सपोज, या PbCl2 के लिए लिखना है, या लिख के दिखाइए। ओके, लिखिए, लिख करके दिखाइए हमें। चलिए अब यहाँ पे हम जो है इसको लिख करके दिखा देते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, ओके, दो हमने दिए एग्जाम्पल। तो
तो AgCl के लिए लिखना है वेरी गुड। अगर किसी ने लिख लिया है तो बहुत अच्छे, जरा मिला लो यहाँ पे ये सही है या गलत है। Cl माइनस, तो ये तो सिंपल है। यहाँ पे हम मोलर कंडक्टिविटी AgCl का और इक्वल टू प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ag प्लस एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। ठीक है, ये इसके बाद हमारा दूसरा है PbCl2। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे होगा PbCl2 इक्वल टू लैम्डा Pb2 प्लस एंड 2Cl माइनस। ठीक है, इस तरह से हमारा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का मिल गया। तो ये हम लोग जान गए जो है कि खलरोस लॉ के बारे में। अब हम यहाँ पे एप्लीकेशन जानेंगे। क्या जानना है अब हमें, एप्लीकेशन। तो अब इसको इरेज करते हैं, बहुत आसान है, कोई भी साल्ट दे इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ खलरोस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ खलरोस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ खलरोस लॉ। ठीक है, हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिटरमाइन कर सकते हैं इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। पहला we can determine the molar or equivalent conductivity of weak electrolyte at infinite dilution। ठीक है, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम जो है पता कर सकते हैं, क्या हम पता कर सकते हैं मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, अब जैसे कि हमें मोलर कंडक्टिविटी पता करनी है, सपोज कि हमारे पास CH3COONA है और प्लस यहाँ पे HCl है, गिव्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH प्लस NaCl। ये कोई एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसमें हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी पता करनी है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी। अब इसमें थोड़ा लगता तो है कि बहुत आसान है, लेकिन आसान है मगर थोड़ा सा अटेंशन देना होगा क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने में फिर गड़बड़ी भी होती है। ठीक है, अब यहाँ से तो ये समझ में आ रहा है कि x प्लस वाई
इक्वल टू सपोज P प्लस Q। अब अगर हमें P निकालना है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस Q। ये एकदम सिंपल सी चीज़ दिख रही है। तो खैर बस ये कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में नहीं रहेगा, अब है ना इजी, ये इधर का जोड़ लिया, जो निकालना है x मान लिया, इसको जोड़ करके इसमें से घटा दिया, हो गया। तो हमें ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रख करके काम करना होगा। जो चीज़ें जितनी आसान होती हैं उतना ही गलतियाँ उसके अंदर होती हैं, तो उसे हमें थोड़ा सा सावधानी से पता करना है। अब सपोज कि हमें हमें इसकी जो है कि मोलर कंडक्टिविटी पता करनी है, CH3COOH की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम सबका मोलर कंडक्टिविटी लिख लेंगे, CH3COOH Na, और इसकी हो जाएगी HCl इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस H माइनस प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लैम्डा NaCl, ठीक है। ये अब ये हमें जानना है इसका क्या होगा। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी, एकदम एल्जेब्रिक इक्वेशन है, बस सिंपल सा है, छोटा 8 9 के बच्चे भी है, अगर एक बार इसको बता दिया जाएगा तो दे कैन डू दिस वेरी इजीली। केवल यहाँ पे जोड़ना घटाना है, यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl सिंपल। इस तरह से हम जो है कि मोलर कंडक्टिविटी किसी का पता कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी किसी का पता कर सकते हैं। अगर दो सॉल्ट, तो यहाँ पे एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा था, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वी यहाँ पे वी कैन लिख लीजिएगा, छूट गया होगा, वी कैन डिटरमाइन। नेक्स्ट हमारा सेकंड है, ये तो हम जान के बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे we can determine degree of dissociation degree of dissociation of weak electrolyte इससे हम जो है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का पता कर सकते हैं एट गिवन डाइल्यूशन। अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलेगा तो भी सेम चीज़ है, डाइल्यूशन। ओके, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल लेके। पहले तो हम लोग जानते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से दिखाते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू कितना डिसोसिएट हो गया, टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयन अपॉन टोटल नंबर ऑफ अनडिसोसिएटेड आयन।
total number of dissociated ion, या molar conductance at a given concentration and molar conduction at infinite dilution। हम कह सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन लिख देते हैं ऐसे, एंड मोलर कंडक्टिविटी एट infinite dilution, इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो यहाँ से हो जाएगा लैम्डा सी फॉर गिवन कंसंट्रेशन, सी फॉर गिवन कंसंट्रेशन। दिख नहीं रहा है, ऊपर लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम इसको जो है ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं तो लिखिएगा अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ठीक है, ये होता है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी गिवन कंसंट्रेशन पे दी हुई है तो हम उसी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डायल्यूशन, सबका तो अपना एक इनफाइनाइट डायल्यूशन पे कंडक्टिविटी होती है, वो फिक्स है, और गिवन पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसको कैलकुलेट करके अब डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता लग जाएगा आसानी से। ओके, चलिए अच्छा किया, नोट कर लिया यहाँ पे। अब हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को भी डिटरमाइन, अगर अल्फा की वैल्यू जान गए, यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू पता हो गई तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी पता कर सकते हैं। इसको इरेज कर नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, काफ़ी स्मार्ट है हम लोग। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी ले सकते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट की फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट also can be determined, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं K इक्वल टू क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर, हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम में। तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 माइनस अल्फा ये वैल्यू होती है। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारी अल्फा की वैल्यू दी हुई है, इसी अल्फा की वैल्यू को उठा करके हमें यहाँ पे रख देना है। ठीक है, ये जो हमारी अल्फा की वैल्यू आई है, इस अल्फा की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखेंगे तो C, यहाँ पे पहले लैम्डा सी m अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट डायल्यूशन m स्क्वायर, ओके, अपॉन 1 माइनस लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। अब इसको जरा इजी करिए तो, और इसको ब्रेक करके देखिए, बहुत जल्दी करिए, फटाफट देखिए तो
यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, इसको आपको देखना है। तो यहाँ से तो हमारा ये हो जाएगा, ऊपर वाला ऐसे ही रहने देते हैं सी, ऊपर जो लिखा है उसको भी टच नहीं करेंगे। यहाँ पे इनफाइनाइट डायमेंशन होंगे स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा एम इनफाइनाइट डायमेंशन एम माइनस ये हो जाएगा सी एम अपॉन एम इनफाइनाइट ठीक है। अब ये जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे। तो इसको अब अगर आगे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, सी एम सी एम स्क्वायर इंटू इनफाइनाइट डायल्यूशन एम अपॉन लैम्डा एम अल्फा स्क्वायर और ब्रैकेट में लैम्डा एम माइनस सी इनफाइनाइट डायल्यूशन माइनस लैम्डा एम सी, ठीक है। ये ब्रैकेट हो गया, यहाँ से कट जाएगा तो हमारा फाइनल क्या मिलेगा, हमें फाइनल मिल जाएगा हमें सी लैम्डा सी एम स्क्वायर अपॉन यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा एम अल्फा और ब्रैकेट में इनफाइनाइट ब्रैकेट में जाएगा एम अल्फा माइनस एम सी, ठीक है। ये हमारा के का फार्मूला मिल गया, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम होगी तो फिर से पूछ लीजिएगा। इसके आगे अब कल देखा जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।